Hello students. Students, today we are going through the revision of chapter 2 from Flamingo, and the title of the chapter is Lost Spring. Children, this chapter is written by Anish Young. Anish Young, who was an Indian writer, and in this chapter the author tells us about those children who have lost their spring, in childhood. Let me tell you the meaning of this title, Lost Spring. Students, spring is a kind of season, the best season of the year. बच्चों, ये जो स्प्रिंग है, बसंत ऋतु को कहते हैं। बसंत ऋतु वर्ष का सबसे अच्छा मौसम होता है, और लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। तो इस चैप्टर में बच्चों अनीस जैन ने उन गरीब तबके के बच्चों पर रिसर्च किया है जो बच्चे अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर सके। बचपन को एंजॉय करने के स्थान पर, पढ़ने लिखने के स्थान पर उनके पेरेंट्स ने उन्हें काम में लगा दिया, पैसा कमाने लगे, एंड दे बिकेम ए पार्ट इन द सर्वाइवल ऑफ द फैमिली। सो स्टूडेंट्स, दिस chapter is an excerpt from the big volume of the author, and this chapter has been taken from stories of stolen childhood. देखिए, ये स्टोरीज ऑफ स्टूडेंट चाइल्डहुड से लिया गया है, और इन दिस चैप्टर द ऑथर टेल्स अस अबाउट द accounts of two children. The name of first is Sahib, and the name of another boy is Mukesh. तो देखिए, we are going to start the first account, and the title of the first account is Sometimes I Find a Rupee in the Garbage. Sometimes I find a rupee in the garbage. Actually, in this account, the author tells us the story of a rent picker named Sahib. देखिए, इसमें समटाइम्स आई फाइंड ए रupee इन द गार्बेज में ऑथर ने हमें साहिब के बारे में बताया है। साहिब जो कि एक रैग पिकर है, एक कूड़ा कचरा ढूंढने वाला है। तो ये टाइटल है, कभी कभी मुझे कूड़े कचरे के ढेर में एक रुपया मिल जाता है। समटाइम्स आई फाइंड ए रupee इन द गार्बेज। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द first paragraph. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrambling for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो देखिए, the author encounters or meets Sahib every morning. She finds Sahib scrambling or screaming for gold in the garbage dumps just in her neighborhood, and asks him, why do you do this? देखिए, ऑथर हमसे कहती है, अनीस जैन हमें बताती हैं कि वो रोजाना सुबह साहिब को कूड़े कचरे के ढेर में सोना खोजते हुए पाती हैं, और उससे पूछती हैं कि तुम ये काम क्यों करते हो? Why do you do this? Sahib left his home long ago.
एक्चुअली साहेब हैज लेफ्ट हिज नेटिव कंट्री लॉन्ग एगो। साहेब ने अपना जो मातृदेश, जो नेटिव कंट्री था, वो लंबे समय पहले छोड़ दिया था। सैट इन एंडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि ढाका के हरे भरे मैदान के बीच में था। और his home is not even a distant memory, meaning that by this time he is not able to have the exact memory of his house, और अभी भी उसे अपने दुकान की, अपने घर की जुड़ी सी यादें हैं, डिस्टेंट मेमोरी है। There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him, अब देखिए, he comes to know this fact from his mother. उसकी माँ उसे बताया करती है कि उसके नेटिव कंट्री ढाका, ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश इज हिज नेटिव कंट्री। तो उसकी माँ उसे बताती है कि उनके देश में बहुत सारे तूफान आते थे, बहुत सारे स्टॉर्म्स आया करते थे, that swept away their fields and homes, that ruined their fields, their homes and everything, जो कि उनके खेतों को, उनके घरों को नष्ट कर देते थे, उजाड़ देते थे। That was why they left looking for gold in the big city where they now live. That was the only reason they left their native country. यही एकमात्र कारण था कि उन्होंने अपने नेटिव कंट्री को छोड़ दिया, मातृ देश को छोड़ दिया, और अब वो इस बड़े शहर में आकर कूड़े कचरे के ढेर में सोना पूछता है, जहां वो रहता है। I have nothing else to do, he mutters looking away. तो जब ऑथर उससे पूछती है, तो why do you do this? तो looking towards the another direction, he speaks slowly, tells slowly to the author. दूसरी ओर देखते हुए धीरे से ऑथर से कहता है, I have nothing else to do. बोला, I have nothing else to do, मेरे पास करने को और कोई काम नहीं है, and that was the only reason I do this rapidly. Go to school, I say briefly, realizing immediately how hollow the advice must sound. अब देखिए, the author asks साहेब if he would like to go to school. अब देखिए, बिल्कुल केयरलेसली, ग्लीवली वो इस बात को लेने से पूछती है, वो मिस अमेरिका से पूछती है, साहेब से पूछती है, क्या तुम स्कूल जाओगे? तो देखिए, and realizing immediately and asking it, she realizes immediately, और जब साहेब से ये बात पूछती है तो तुरंत इस बात को रियलाइज करती है, महसूस करती है कि हाउ फॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि उसकी जो एडवाइस थी वो कितनी फॉलो की। फॉलो का मतलब कितनी मीनिंगलेस थी, कितनी यूजलेस थी। तो साहेब कहता है, देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, बोले मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। When they build one, I will go, and when the school will be built, I will join it. If I start a school, will you come? I asked half joking, and again the author asked Sahib half joking if she would build a school, would he join it? Yes, he says, smiling broadly, throwing a broad smile on his face. He says to the author that he would surely join it. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? So a few days later, after some days, the author looks at him, who keep coming to the author quite running, and asks the author, have you built your school? So the author simply says, it takes longer to build a school. I say, whereas that have you made a promise, that was not meant. देखिए, जब ऑथर ने साहब से कहा यदि मैं स्कूल बनता हूँ तो तुम ज्वाइन करोगे, कुछ दिन के बाद साहब तो ऑथर को उसके पास आता है, ऑथर के पास पूछने लगता है, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? तो देखिए, ऑथर उससे कहती है, अरे स्कूल बनाने में समय लगता है, लेकिन उसने इस बात को बड़ी परेशानी के साथ ऑथर से
ऑथर ने बड़ी परेशानी के साथ शायर से बोला, शायर से कहा, बिकॉज शी हैज मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड, क्योंकि उसने एक ऐसा प्रॉमिस किया था दैट वाज इम्पॉसिबल टू बी फुलफिल्ड, जिसे कि पूरा करना असंभव था। बट प्रॉमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज बिलीफ वर्ल्ड, लेकिन ऑथर कहती है कि लेकिन मेरे जैसे प्रॉमिसेस उसके उदासी से भरे संसार में बहुत से लोगों के द्वारा किए जा चुके थे। मैनी लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड मैनी पॉलिटिशियंस हैव मेड सच काइंड ऑफ प्रॉमिसेस इन हिज लोकेलिटी दैट वाज फुल ऑफ सैडनेस एंड सफरिंग्स। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम, कई महीने के बाद, कई महीने की जान पहचान के बाद ऑथर कहती है कि मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। साहिब आलम ही अनाउंसेस, तो ही अनाउंसेस हैप्पीली दैट हिज नेम इज साहिब आलम। वो बड़ा खुशी से बताता है कि उसका नाम साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, लेकिन उसे इसका मतलब नहीं पता। He does not know the meaning of his name, Sahib Alam. And if he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. देखिए, the author tells us that if he would come to know the meaning of his name, the meaning of his name is, the meaning of Sahib Alam is Lord of the universe. देखिए, Sahib Alam का मतलब क्या होता है? पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार का स्वामी। तो if Sahib comes to know the meaning of his name, तो he would hardly believe the reality of his name. तो वो मुश्किल से ही अपने नाम की वास्तविकता पर विश्वास करेगा। वो मुश्किल से ही इस बात पर विश्वास करेगा कि the meaning of his name is Lord of the universe, but he is an ordinary replica. उसके नाम का मतलब तो ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन वो केवल एक पूरा का शब्द है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। वी शैल गो टू द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।